Our next session, The Bird Woman of Doranda and Other Stories from the Wild. Raza Kazmi and Bikram Grewal will be speaking about the very fascinating Jamal Ara, known as India's first bird woman, and other stories from the jungles of Jharkhand. Bikram Grewal is one of India's most eminent ornithologists and bird watchers. And he's also an environmentalist and a conservationist. And he will be speaking to Ranchi's very own Raza Kazmi. Please have a seat, and we'll begin the session. Thank you. Thank you so much. Shall we start? You know, one of the great tragedies of coming to Ranchi and coming to Jharkhand, which I love so much and have been so many hundreds of times, is that you are short of non-literary heroes and heroines. Whereas you had in Jharkhand, in the city of Ranchi, one of the greatest bird watchers in this country, and nobody, including myself, who has written 36 books on birds and other animals, knew anything about her. She was forgotten. She died in 92. And today, thanks to Raza, she is being discovered, and we are finding that Ranchi has its own heroine. I have in my hands a fascinating book, which has just been published 2-3 months back, and is now out of print in 3 months. And a new edition is just coming out, called Women in the Wild. It's about all the women who worked with Indian wildlife, contemporary Indian women, and the first chapter, which has been written by my colleague Raza, is about a wonderful woman called Jamal Ara, who lived in Duranda, which I passed this morning on the way from the airport. And she died such a tragic life. I'll talk to you about it, or Raza will, that how tragic a life she led. But the tragedy, like I said, is that she is forgotten. कोई याद नहीं करता, कोई नहीं जानता, किसी ने नाम नहीं सुना, including myself. मुझे पता भी नहीं था कौन थी, मुझे ये नहीं पता था किससे शादी हुई थी कि नहीं हुई थी. और मैंने उसके ऊपर जब मैंने पहले 10 साल पहले कुछ आर्टिकल लिखा था, सब गलत लिखा था, सब गलत. और मैं अभी रज़ा से कहूँगा, रज़ा ने ये कहानी लिखी है उसके ऊपर, like a detective novel. It's one of the finest pieces of writing I've had the privilege to read in recent times. ये बताएगा, ये किताब यहाँ मिलती है, सस्ती है, और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो जमाल आरा के बारे में है. मैं तो पहले सोचता था कि जमाल आरा जो है वो कोई मर्द का नाम है. वो तो मुझे कई साल बाद मुझे पता चली that she was actually a woman. And much later, I discovered that not only was she studied only till class 10, but she has over 60 articles, 60, 65, 66 articles written about her. She translated in K.S. Dougal, Kartar Singh Dougal. And so without much ado, मैं रज़ा से प्लीज़ कहूँगा कि प्लीज़ जमाल आरा के बारे में पहले बताएं, उसकी कहानी बताएं, फिर हम लोग झारखंड की और कहानी सुनाएंगे आपको. Thank you so much. So thank you so much for the kind introduction, Vikram sir. You have been too kind. तो मैं हिंदी में ज़्यादा बात करने की कोशिश करूँगा. जमाल आरा, जैसा कि सर ने बताया, हम सब ने शायद जो है वो, अगर किसी को ज़रा भी चिड़ियों में रुचि है तो उन्होंने सालिम अली का नाम सुना होगा. सालिम अली जो हैं वो इंडिया के पहले जो हैं वो ऑर्निथोलॉजिस्ट है, इंडिया के बर्डमैन, बहुत फेमस, सब लोग जानते हैं उनके बारे में. लेकिन मेरे मन में ये ख्याल आया कि इंडिया की
पहली बर्ड वुमन कौन थी। हमेशा हमारे किसी भी हम क्षेत्र को ले लें देश के, हमेशा ये होता है कि जो मर्द होते हैं उनकी बात होती है, उनके कार्य की सराहना होती है, उनका नाम होता है, लेकिन कई दफ़ा ये होता है या आम तौर पे ये होता है कि औरतों ने उस फील्ड में क्या काम किया था, उस क्षेत्र में क्या काम किया था, इसके ऊपर चर्चा या तो नहीं होती है या बहुत कम होती है। और ये ख़ास तौर पे और ज़्यादा सही था जबकि बात हो रही हो 1950, 1960, 1970 के दशकों की। उस समय और कॉन्जर्वेशन यानी कि संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में, बर्ड वॉचिंग के क्षेत्र में, इन सब में औरतों का एंट्री बहुत मुश्किल थी उस ज़माने में। तो उस ज़माने में यदि कोई औरतें जो हैं वो जंगलों में, रिमोट जंगलों में जा रही थीं, उनके बारे में लिख रही थी, वो बहुत बड़ी बात थी। तो मेरी राइटिंग में कई चीज़ों में मेरी अलग अलग फील्ड्स में इंटरेस्ट में से एक वाइल्ड लाइफ हिस्ट्री पे है। हिस्ट्री लेकिन जंगल, जानवरात, संरक्षण, कंजर्वेशन, इन सब से रिलेटेड। और मैं कई बार पढ़ता था तो जैसे सर की तरह मैंने भी जमाल आरा का नाम मेरे नज़र से गुजरा था। नेशनल बुक ट्रस्ट के बारे में आप सब जानते होंगे। नेशनल बुक ट्रस्ट की एक बहुत पतली सी किताब आती थी बच्चों को और यंग टीनेजर्स को बर्ड वॉचिंग में इंटरेस्ट डालने के लिए। एक किताब आती थी, उसका नाम था वॉचिंग बर्ड्स। 1970 में पहली बार प्रकाशित हुई थी और उसकी ऑथर जो थी वो जमाल आरा थी। तो मैंने वहाँ से सुना, मैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बहुत फेमस है हमारी, वहाँ पे उनके आर्टिकल्स पढ़े और मैं बड़ा सरप्राइज था क्योंकि आम तौर पे आप पाएंगे कि संरक्षण की बात होती है, वन्य जीवों की बात होती है, बाघों की बात होती है, तो आमतौर पे हम कान्हा, रणथंभौर, कॉर्बेट, इन सब जगहों के नाम सुनते हैं। बिहार, उस ज़माने में जो बिहार था, आज झारखंड है, यहाँ पे क्या जानवर पाए जाते थे, क्या चिड़ियाएँ पाई जाती थीं, उनका रहवास कैसे था, वो सारी चीज़ों पे बहुत कम शोध होता था। ये जब अंग्रेज़ों के ज़माने में भी ये सही था, जब अंग्रेज़ और जगहों के बारे में बहुत अधिक लिख रहे थे, लेकिन छोटा नागपुर के बारे में गिनी चुनी किताबें लिखी गई हैं या गिने चुने लोगों ने उसके जो नेचुरल हिस्ट्री है उसके बारे में लिखा है, वन्य जीवों का, वनों का जो इतिहास है उसके बारे में लिखा है। तो जमाल आरा का नाम आना मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि एक तो कोई इस एरिया के बारे में लिख रहा है और वो भी जैसे मुझे पता था कि एक औरत हैं जो वो इस एरिया के बारे में लिख रही हैं, और वो भी उनका पहला आर्टिकल जो है वो 1949 में 1949 में आया है। और उस ज़माने के कॉन्जर्वेशनिस्ट जो थे, सालिम अली, ईपीजी, बहुत सारे जो एम कृष्णन, ये सब बहुत मशहूर नाम है, पद्म भूषण जीते हुए बहुत सारे ये लोग मशहूर नाम है संरक्षण के क्षेत्र में। उन सभी ने जब इनके बारे में पढ़ा और उनके काम को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि इसको जो है वो हमें इनका काम जो है वो ऐसा है कि हर राज्य को इनके जैसे एक संरक्षणवादी या बर्ड वॉचर की ज़रूरत है। और सालिम अली ने कहा कि ये पहली औरत हैं भारत की जो चिड़ियों के ऊपर काम कर रही हैं, ऑर्निथोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो शी वॉज द फर्स्ट इंडियन बर्ड वुमन, जैसे सालिम अली वॉज द फर्स्ट बर्डमैन, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन बर्ड वुमन। और उन्होंने उनका काम जो कि लेट 1940 से शुरू हुआ, वो डोरंडा में ही रहती थी, और उनका काम जो लेट 1940 से शुरू हुआ वो लगभग 1988 तक उन्होंने लिखा। और उसके बाद वो उनकी काफ़ी ट्रैजिक लाइफ रही जिस पे चर्चा होगी। फिर वो उनका देहांत जो है 1995 में हुआ। तो ये एक उनके जस्ट कंट्रीब्यूशन की बात है। और खाली वो, जैसा मुझे पता चला शोध में, वो रिसर्च ऑर्निथोलॉजी के ऊपर नहीं लिखती थी, शी वॉज ऑल्सो वेरी गुड शॉर्ट स्टोरी राइटर, शी वॉज अ वेरी गुड ट्रांसलेटर। वो बहुत सारे जो हैं वो किताबों के ऊपर उन्होंने ट्रांसलेशन किए थे और बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी वो, जो कि बहुत खूबसूरत हैं, झारखंड के ऊपर, यहाँ के आदिवासी संस्कृति के ऊपर, जंगलों में क्या हो रहा है। और ये सब उन जगहों के बारे में है जिनके बारे में आज शायद हम कोल्हान को ले लें, पलामू को ले लें, सिंहभूम को ले लें, जहाँ की जो वे ऑफ लाइफ है, रहने का तरीका है, उसको आज हम उतना नहीं जानते, क्योंकि आजकल जो भी न्यूज़ में हम सुनते हैं झारखंड में, वो अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो हैं वो कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कहीं कोई नक्सल वायलेंस हो रही है, उसकी वजह से सुनते हैं। लेकिन पहले कैसे लोग रहते थे, क्या परिवेश था उस ज़माने का, उसके बारे में बात नहीं होती। तो उसके लिए भी उनकी राइटिंग बहुत रिमार्केबल है। रज़ा, थोड़ा हमारे ऑडियंस के लिए बताओ, उनकी
पर्सनल स्टोरी क्या थी कि why was it full of tragedy? She died in unsung, she died in more or less in poverty or semi-poverty, but totally unknown till the last few months, as it were. What So- is the story? जी सो जमाल आरा का जन्म जो है वो 1923 में बिहार में एक जगह है बाढ़ करके, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी जो थे वो पुलिस में थे। आई थिंक मुझे सही याद है 7 वो लोग भाई बहन थे, जिनमें से जब बंटवारा हुआ तो 2 पाकिस्तान चले गए और बाकी 5 इंडिया में रहे, फिर वो भी इधर उधर हो गए। जमाल आरा जो थी उनका उनकी शादी बहुत यंग एज में, आई थिंक अराउंड वो 23 के लिए होंगे, I mean, बहुत यंग भी नहीं बट स्टिल यंग, 22-23 की उम्र के आसपास उनकी शादी जो है वो हमदी बे नाम के एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट थे कलकत्ता में, टेलीग्राफ न्यूज़पेपर के। यदि आप गूगल करेंगे उनके बारे में तो आप उनको पता चलेगा कि वो 50, 60, 70, 80 के बहुत वेल रिगार्डेड जर्नलिस्ट हुआ करते थे। उनसे उनकी शादी हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन दोनों के बीच में बात जमी नहीं। हमदी बे का कुछ जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह हो गए, जो भी, और सारी जो उनकी शादी जो थी वो बेसिकली विद इन 3 साल में 4 साल में वो टूट गई। और उनकी एक बेटी थी जिनका नाम मधुका सिंह है, जो आज भी डोरंडा में रहती हैं, और वो उनकी पर्सनल लाइफ की कहानी मुझे उन्हीं के थ्रू हम पता लोग चली। कोशिश कर रहे थे उसको आज लाने के लिए, बट उनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई है तो आज हमको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। जी और मगर आप लोग जो रांची में रहते हैं, प्लीज़ यू मस्ट गो एंड थ्रू रज़ा ट्राई एंड सी हर। जी तो बेसिकली ये हुआ कि जब उनकी शादी ब्रेक डाउन हो गई तो उनकी बेटी जो उस समय में भी 1 साल 1.5 साल की थी, और वो उन दोनों को उनको घर से निकाल दिया गया लिटरली। और उस समय जो है वो कोई उनका सहारा नहीं था। उनको वो इस शादी में, जैसा कि उनकी बेटी ने बताया, वो इस शादी में आना नहीं चाहती थी, लेकिन जैसा होता है आमतौर पे कि घर वालों ने कहा कि नहीं कर लो शादी, या अच्छा रिश्ता है वगैरह करके उनकी शादी कर दी गई। तो उनका घर से भी उनकी नाराज़गी थी, तो वो घर वापस नहीं आना चाहती थी, और लिटरली कह सकते हैं आपकी सड़क पे एक तरह से आ गई थी। लेकिन वो सड़क पे आ जाती, लेकिन उनके एक कज़न थे उनके, जिनका नाम था, जो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर थे, जिनका नाम था समी अहमद। 1940 के वो बैच के अंग्रेज़ों के ज़माने के IFS ऑफिसर थे। तो उन्होंने इनको शरण दी, उनको पनाह दी, और उन्होंने इनकी बेटी को जो है, और मधुका को और जमाल आरा को, और उन्होंने जो है वो इनको ट्रेन करना सॉर्ट ऑफ शुरू किया। एक और उस ज़माने में एंग्लो इंडियन IFS ऑफिसर हुआ करते थे, PW ऑगियर करके, यहाँ पे अब नहीं रहे। एक बहुत फेमस होटल हुआ करता था रांची में अंग्रेज़ों के ज़माने का, क्लेटन होटल, तो उससे उनकी फैमिली रिलेटेड थी। उन्होंने मिस्टर जो ऑगियर थे, उन्होंने जो है वो PW ऑगियर ने और समी अहमद ने इनको सॉर्ट ऑफ सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना शुरू किया इनको जो है वो, और उनको चिड़ियों में, और जब उनकी जंगल और चिड़ियों में ये क्या रुचि खाली देखी। सब रांची में हो रहा था? रांची में सर रहती थी, तो क्योंकि उस ज़माने में IFS में थे समी अहमद, उनकी जॉब ट्रांसफ़र वगैरह होती रहती, तो जहाँ वो ट्रांसफ़र होते थे वो साथ में चली जाती थी उनके, जब तक कि मधुका स्कूलिंग की एज में नहीं आई। उसके बाद फिर वो जब वो स्कूलिंग की एज में एक बार आ गई, तब वो रांची में ही रहने लगी। तो जब समी अहमद यहाँ पे अगर उनको ट्रांसफ़र होता था तो उनके साथ रह लेते थे, अगर नहीं होता था तो एक किराए के मकान में रह लेते थे। तो उसके बाद उन्होंने जो है वो इनको ट्रेन करना शुरू किया, क्योंकि वो 10वीं तक ही उन्होंने पढ़ाई की थी, तो उनको अंग्रेज़ी में उनको लिखना सिखाना, उनको जो है वो आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं, एसेज कैसे लिखते हैं, एंड विद इन ए ईयर और 2, 1-2 साल के अंदर ही जो है वो उनको समझ आने लगा मिस्टर ऑजियर को, मिसेस ऑजियर बिहार की पहली एंग्लो इंडियन MLA थी। तो इन लोगों को समझ में आने लगा कि इनमें बहुत टैलेंट है, जो कि एक नेचुरल फ्लेयर होता है राइटिंग का, एक ऊपर ईश्वर की तरफ से दिया हुआ जो एक वरदान होता है लिखने का, वो इनके पास था। तो इन्होंने इनको ट्रेन करना शुरू किया, और फिर इन्होंने अपने आर्टिकल्स और ये सारे लिखना शुरू किए। अनफॉर्चुनेटली ट्रेजिडीज़ हमेशा इनके साथ चलती रहीं। समी अहमद जो इनके इतने करीबी थे, जिन्होंने इनको पनाह दी, जिन्होंने इनकी बेटी को पढ़ाया लिखाया, उनका जो है वो पलामू में एक बिहार के ज़माने में बड़े फेमस पॉलिटिशियन हुआ करते थे, KB सहाय।
चीफ मिनिस्टर भी रहे थे, उनकी जो बेटे थे वो पलामू के जंगलों में शिकार करते हुए पकड़े गए। और जैसा कि होता है आमतौर पे, हालांकि उस ज़माने में शिकार लीगल था, लेकिन आपको परमिट वगैरह लेके प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू करना होता था। इन्होंने ये गए क्योंकि इतनी पावरफुल फैमिली से आते थे और शिकार करने लगे। समी अहमद ने इनको जो है वो पकड़ लिया, एप्रीहेंड कर लिया, और उसके बाद इनके ऊपर बहुत प्रेशर आया, पॉलिटिकल प्रेशर, कि इनको छोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि नथिंग डूइंग, उन्होंने कहा कि मेरे लिए जो मेरा कर्तव्य है और मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। जैसा कि होता है आमतौर पे, ही वॉज पनिश फॉर दैट, उनको सस्पेंड कर दिया गया, और उनको सस्पेंड करके उनको डिमोट कर दिया गया, और वो बहुत लंबे समय तक सस्पेंशन में रहे। और इसी दौरान, मतलब आप ये सोचिए कि 1940 में, जब 1956 के आसपास मैंने एक क्लासिफाइड लिस्ट देखी ऑफिसर्स की, तो वो बिहार में, पूरे बिहार में 3rd सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे, लेकिन वो 34वें रैंक पे थे, सबसे जूनियर मोस्ट पोजीशन पे, और सस्पेंशन में तब भी चल रहे थे। और उसके बाद जब उनको एक बार सस्पेंशन से कई सालों बाद हटाने की बात हुई, तो उनसे कहा गया कि आप अपने जूनियर के अंदर जो है वो काम करेंगे, जिस पे उनका और मन जो है वो उचट हुआ कि जिस विभाग के लिए उन्होंने इतना योगदान दिया, जिसके लिए उन्होंने इतनी सैक्रिफाइसेस दी, उसी ने इनको अबैंडन कर दिया। और उसके बाद जो है वो उसी दुख में उनका 66 में उनकी देहांत हो गया, उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। अगेन मधुका वॉज अबैंडन्ड, ये सारी चीज़ें हुई। देन एक बहुत रिमार्केबल पर्सनालिटी जिनको आप लोग जानते होंगे, जयपाल सिंह मुंडा जी। जयपाल सिंह मुंडा जो हैं वो, क्योंकि समी अहमद और कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो उस ज़माने के थे, उनके दोस्त थे, जमाल आरा के बारे में जानते थे, उनकी लिखाई को की सराहना करते थे, तो ही केम टू द रेस्क्यू, और वो फिर उन्होंने आके इनकी फैमिली को मदद की। मधुका जो कि कॉलेज में थी, उनकी कॉलेज की फ़ीस वगैरह पे करना, ये इंश्योर करना कि उनकी पढ़ाई जो है वो समी अहमद के जाने की वजह से जो है वो ख़त्म ना हो जाए। और उसके बाद जो है वो इवन मधुका के लिए एक वर ढूंढना, उनके लिए ग्रूम ढूंढना, ये सारा काम जयपाल सिंह मुंडा ने किया। फिर ये कुछ कुछ धीरे धीरे लिखती रहीं, हालांकि ये डिप्रेशन और इन सब चीज़ों से ग्रस्त थी उसके बाद, लेकिन शायद बर्ड वॉचिंग, उसके बारे में लिखना, यही इनका एक एस्केप था। और फिर 88 के आसपास इन्होंने फाइनली, जब ये अपने बुढ़ापे में थी, तो ये अपने वापस अपनी फैमिली से रिकनेक्ट इन्होंने किया। एक उनकी बहन हुआ करती थी सायरा नाम की, जो पटना में रहती थी, हु हरसेल्फ वॉज अ विडो, जो कि विधवा थी, और उनके शी वाज हाफ पैरालाइज्ड, उनके पैरालिसिस था। उनको फिर वो रांची लेके आई अपने साथ रहने को। उन्होंने 1 साल जो है वो बहुत मेहनत करके उनकी तबीयत सही की, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जैसा होता है, जो जहाँ रहा होता है वो वापस जाना चाहती थी। और जब फाइनली उन्होंने कहा कि मैं वापस जाना चाहती हूँ, तो दैट फाइनली ब्रोक हर, कि उनकी जो एक तीसरी दफ़ा उनको ऐसा अबैंडनमेंट का एहसास हुआ, जिससे उनकी मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, जिसकी वजह से देन एंड शी हैड स्किज़ोफ्रेनिया अपीयरिंग, उनको स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी बहुत ज़्यादा उसको ग्रस्त कर लिया, जिसमें उन्होंने उसके बाद वो लिखना सब छोड़ के, और वो बस अपने घर में कैद होके रह गई। 92 के दौरान उसी आप कहिए कि मेंटल ब्रेकडाउन की वजह से उन्होंने जितना काम किया था आज तक अपनी ज़िंदगी, 50 साल के करियर में, सारा कुछ उन्होंने, उनकी बेटी बताती है कि ये कह के कि सब बेकार था, मेरी पूरी ज़िंदगी बेकार थी, मेरा सारा काम बेकार था, मैंने कुछ नहीं किया। और ये कह के उन्होंने अपना जितना लिखा था, जितना उन्होंने उनका आर्काइव से, उन्होंने सब जो है वो अपने घर में जाके उन्होंने उसको वरांडे में रख के और उसको आग लगा दी। और 95 में जो है वो उनका ऐसे ही अपने घर में बिना किसी के जाने पहचाने उनका जो है वो देहांत हो गया। तो ये एक ब्रॉड ओवरव्यू है उनकी कहानी की। रजा, इज इट ट्रू कि हालांकि that she translated Kartar Singh Duggal, wrote non-technical articles, translated fiction, is it true that she studied formally only till class 10? जी, If she studied till class 10, how is it that, she became such a famous writer? That is the greatness of the woman. जी बिल्कुल। मैंने भी यही बात मधुका मैम से पूछी, और उन्होंने मुझे बताया कि वो कहती थी कि उन्होंने उन्होंने कहा था कि माय मदर्स एजुकेशन, मेरी माँ की जो पढ़ाई एक्चुअली हुई, वो जो मैंने एंग्लो इंडियन जो थे ऑजियर जो थे, PW ऑजियर की जो वाइफ थी, उन्होंने कहने लगे कि मेरी माँ को जो है वो एक्चुअली पढ़ाया। तो जब वो
जब समी अहमद के, क्योंकि वो सीनियर थे और मित्र थे, तो जब उनकी फैमिली में जान पहचान भी और उनको जमाल आरा की कहानी के बारे में पता चला कि उनके हस्बैंड ने अबैंडन कर दिया और वो बेटी हैं, तो और उनको थोड़ा बहुत वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने कहा कि आप लिखिए अपने ऑब्जर्वेशन, और तब उन्होंने उनको अंग्रेज़ी में ट्रेन करना शुरू किया। और आई थिंक 2-1 साल वो उन्होंने ट्रेन भी किया। और वो कहती थी कि जमाल आरा ने बहुत मेहनत की। वो उस ज़माने में बिजली नहीं होती थी, तो वो एक्चुअली जो इंग्लिश में टर्म है कि पोरिंग मिडनाइट, वो बैठ के जो है वो पढ़ती रहती थी किताबें, उनको जो अलग अलग लिटरेरी राइटिंग, नॉन लिटरेरी राइटिंग, साइंटिफिक राइटिंग, एंड वो देन धीरे धीरे एंड देन व्हेन शी हरसेल्फ स्टार्टेड राइटिंग, जब वो उन्होंने खुद लिखना शुरू किया, तो उन्होंने पाया कि, और बाकी लोगों ने पाया कि उनमें एक टैलेंट था फॉर राइटिंग और एक्सप्रेसिंग. इट जस्ट नीडेड अ लिटिल गाइडेंस ऑफ ट्रेनिंग इन द लैंग्वेज. that art of writing was always there in her, उनके अंदर था, बट कला थी, लेकिन जब उनको इसने जमाल आरा ने अपने कागज, अपने फोटोग्राफ्स, अपने ऑब्जर्वेशंस को आग लगा दी थी, she did it under some sort of depression. Does this mean that everything she wrote disappeared? Or is there nothing available now other than that booklet which NBT published? उनकी राइटिंग्स बहुत सारी जो पब्लिश हो गई, जो पब्लिश हो गई थी, वो बट हैं। उनके जो ऑब्जर्वेशंस बाकी जो हैं, जो उनकी सर प्राइवेट राइटिंग्स या उनकी टूर डायरीज, फील्ड डायरीज, ये सारी किस्म की चीज़ें, फोटोग्राफ एल्बम वगैरह, वो सारा कुछ जो है, वो जितना मुझे पता है, वो सारा जितना कुछ मिला है वो उन्होंने जला दिया था. हालांकि उनकी डॉटर बताती हैं कि एक कोठरी है जिसमें कुछ सामान जो बच गया था, जो नहीं निकाल पाई थी, वो उसमें रखा है. लेकिन शायद उनके लिए भी इतना ट्रॉमेटिक ये सब रहा था कि 95 के बाद से आज कितने साल हो गए, 28 साल हो गए, उनकी कभी कहने मेरी हिम्मत नहीं हुई उस कोठरी को आज तक खोलने की. अब मैं कुछ महीनों से उनको कन्विंस कर रहा हूँ कि हम लोग पता नहीं उसमें दीमक लगी है कि बची भी है कि नहीं है. बट आप लोग जो सब बैठे हैं यहाँ, यू नो, residents of Ranchi, you have a ready-made heroine in your hands, in your vicinity. Why don't all of you get together and do something about it? You have got Raza as the resource person. He has all the stories. And just get together and try and do something. I mean, force the government, force the forest department to commemorate this memory of this, one of the greatest women in the world of bird watching and natural history. When you're sitting in your backyard, it's such a tragedy, because once Madhuka, the daughter, dies, which might be happen very, very quickly. Madhuka, incidentally, is the Latin name for the mahua tree. Madhuka indica bolte hain usko, after which she was named. Once she goes, does the whole legacy go? If it goes, it's the biggest tragedy that would have hit this part of the country. Anyway, thank you, Raza. I just wanted to... This is a fascinating story, and I'm so glad that I got the opportunity to come to Ranchi, and hopefully maybe tomorrow or something we might be able to go and see Madhuka. But like Jamal, who was from a Muslim background, which in itself is makes you a disadvantageous. She was a woman. Her writings, of which I've read not everything but a fair amount, is of world class. But in Jharkhand, you have other people of the same caliber, also unsung. You have somebody like Anne Wright, for instance, who was an English woman, but spent a lot of time in the forests of Jharkhand. She was instrumental in getting Palamum recognized. She was one of the people who helped create Dalma elephant, this thing, and lots of other stuff. Why is it that nobody recognizes him or other people like S.P. Sahi and other people? What is the reason? I think, sir, कि इसका the primary reason इसका प्रमुख कारण ये है कि हमारे खास तौर पे सरकार का, हम लोग ये एक विडंबना है कि हम लोग जब झारखंड की बात करते हैं तो
हम सब ने जो है वो ये क्या नाम है यहाँ के लिए हम लोगों ने सुना है कि हम लोग बात करते हैं जल जंगल ज़मीन की, लेकिन उस जल जंगल ज़मीन में कहीं जानवर छूट गया है, क्योंकि जितना हम लोगों का ये जल जंगल ज़मीन हमारे हैं, हमारे आदिवासी भाइयों के हैं, उन्हीं के संसार का एक बहुत अभिन्न अंग जो थे वो जानवर भी हुआ करते थे। लेकिन ऐसा हुआ है कि डिस्कशंस में जानवर कहीं खो गए, और उसका रिफ्लेक्शन ना सिर्फ जनरल कॉन्वर्सेशन में दिखता है कि हम उनकी बात नहीं करते, बट पॉलिटिक्स में भी दिखता है कि अनलाइक अदर स्टेट, बाकी स्टेट्स में आप देखें कि वन्य जीवों के ऊपर एक उस पर एक फोकस रहता है। आप मध्य प्रदेश की बात करें, आप उत्तराखंड की बात करें, आप इवन हमारे बगल में आप लेने उड़ीसा में एटलीस्ट सिमलीपाल, सतकोसिया, इन सब जगहों पे बहुत फोकस करती है सरकार, मंगला जोड़ी वगैरह में। लेकिन झारखंड में और इवन बिहार के केस में रहा था, बिहार में हालांकि अब फिर भी थोड़ा फोकस वाल्मीकि वगैरह चंपारण के जंगलों पे आया है, झारखंड में कभी फोकस वाइल्ड लाइफ पे नहीं रहा है। वन्य जीवों के ऊपर क्योंकि सरकार का कभी फोकस नहीं रहा, तो वो कभी कॉन्वर्सेशन का पार्ट नहीं रहे। 70s 80s तक सपोर्ट था कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि उस ज़माने में उस किस्म के ऑफिसर थे, उस किस्म के लोग थे। इवन विद इन ग्रास रूट मूवमेंट से आदिवासी समाज में कई ऐसे जो हैं वो लोग थे कि जिन लोगों को जो जागरूकता फैलाते थे जंगलों के, जानवरों के बारे में भी, जंगलों के साथ साथ। लेकिन कहीं वो लास्ट 20-30 सालों में वो चीज़ ख़त्म हो गई, और क्योंकि जब सरकार का कोई फोकस नहीं है, लोगों का कोई फोकस नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात ये होती है कि उसके आप उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में लोगों का जागरूकता है। और जब आप उस सब्जेक्ट के बारे में, फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ के बारे में ही नहीं बात कर रहे हैं, तो उस फील्ड से जुड़े लोगों के बारे में आप और बिल्कुल बात नहीं करेंगे। नहीं, बट देखो ना, जैसे उत्तराखंड है, छोटी सी जगह है, टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इज थ्राइविंग। जी, कितने राजा जी है, कॉर्बेट है, कितने जगह हैं, और लोगों की आमदनियां बन रही, उसका प्रोफेशन है। और आप झारखंड में was a much more better known, better organized place than, let's say, all these smaller places. But वहाँ बिजनेस चल रहा है, यहाँ तो कोई आता ही नहीं, यहाँ तो कोई जंगल तुम्हारे खाली हैं। मैं अभी गया था, डालमा गया था, एक not one bird I saw, पूरा दिन घूमा। बट ये किस लिए है? Why has Jharkhand neglected its wildlife to the extent that all these forests are now dead forests, are silent forests? Is it because शिकार होता था, या ट्राइबल्स में शिकार होता है, कि गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड, द प्राइवेट एंटरप्राइज इज नॉट इंटरेस्टेड? इसका सर कई सारे इसके आयाम हैं, देयर आर मेनी रीजन फॉर इट, कि जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ का, वन्य जीवों का डिस्ट्रक्शन हुआ है, संहार हुआ है झारखंड के जंगलों से। आप एक कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी उसका है, कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है उसका कि जैसा कि यहाँ पे कुछ लोग जानते होंगे कि हम लोग जब बात करते हैं झारखंड मूवमेंट की, तो उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा अभिनंग जो था उसका, वो उसकी शुरुआत जो थी वो सिंहभूम के जंगलों से हुई थी। सिंहभूम के जंगलों में शुरुआत जो हुई थी उसका, झारखंड मूवमेंट की, उसका कारण था कि साल के जंगलों को काट के वन विभाग जो है वहाँ पे टीक लगाना चाहता था। लेकिन और साल का यहाँ पे हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, सबके लिए, उनके लिए बहुत, उनका जो है वो आध्यात्मिक, उनके लिए स्पिरिचुअल, उनके लिए कल्चरल जो है वो महत्व है उसका। लेकिन सरंडा और कई जगह पलामू वगैरह के जंगलों में उस साल का डोमिनेंस, वो भी जो है उसका कारण ये था कि अंग्रेज अफसर जो थे वो, देयर वाज समथिंग कॉल्ड सिल्वी कल्चर, कि फॉरेस्ट को कोट अनकोट टिम्बर के लिए साइंटिफिकली मैनेज करना, जिसमें ये किया जाता था कि जंगलों को में सिर्फ एक तरह के पेड़, जैसे साल हुआ, क्योंकि उससे बहुत अच्छा टिम्बर मिलता था, उसको हम बचा के रखेंगे, बाकी पेड़ों को जो हैं उनको हम साफ करेंगे। उससे होता क्या था कि अगर आप किसी फॉरेस्ट का मेकअप चेंज करने लगेंगे, क्योंकि जंगल में जानवर जो रहते हैं वो हर तरह की वनस्पति खाते हैं, हर तरह के पेड़ों पर डिपेंड करते हैं। यदि आप उस जंगल को आप एक तरह के पेड़ों से के लिए ही सिर्फ रखें और बाकी मोनोकल्चर करना शुरू कर दें, तो ऑटोमेटिकली वहाँ की जो फौना है, वहाँ के जो जानवर हैं, वो वहाँ से गायब होने लगेंगे। और ये बहुत बड़े स्तर पे झारखंड में हुआ कि बहुत सारे जंगलों को जो है वो सिल्वी कल्चर के नाम पे कन्वर्ट कर दिए गए, जिससे कुछ नुकसानात हुए। दूसरा नुकसान ये था कि शिकार, क्योंकि हमारे यहाँ
कल्चरल ट्रेडिशन रहा है, उसका बहुत इम्पोर्टेंस रहा है आदिवासी समाज में। तो शिकार जो था वो एक बहुत अभिन्न था यहाँ पे, लेकिन बाकी स्टेट्स में, आप मध्य प्रदेश का एग्जांपल लें, और उत्तराखंड में लें, आप साउथ के स्टेट्स में ले लें, महाराष्ट्र में ले लें, इन जगहों पे क्या हुआ कि जब 1972 में शिकार पे बैन हुआ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के आने के बाद, वन्यजीव अधिनियम के आने के बाद, तो उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पे ऑल्टरनेट लाइवलीहुड बनाए गए लोगों के लिए, जो अब जिनका जीवन यापन में उनके दिक्कतें आई शिकार के बंद होने। शिकार जिस ज़माने में होता था लोगों के लिए, ख़ासतौर पे जंगल में, उनके लिए कई तरह से इम्पोर्टेंट था। उनके लिए वो एक कल्चरल उसका एस्पेक्ट भी था, बट ऑल्सो कई बार शिकारी बाहर से आते थे तो वो हाका करवाते थे, तो हाके में जो बीटर होते थे वो गांव के लोग होते थे, उनको ये दिया जाता था कि ठीक है तुमको सबको उस ज़माने में 1 रुपये 2 रुपये दिहाड़ी दी जाएगी। वो होता था जो आके टूरिस्ट मेरे मतलब शिकारी रुकते थे वहाँ पे, उनके जो है वो खाने पीने का इंतज़ाम। उसके अलावा ये होता था कि जो शिकार होता था कई बार पेल्ट्स वगैरह उनको बेचा जाता था, तो उससे जो है वो पैसा आता था। तो ये सारी चीज़ें जब रुकी तो उसके एवज में क्या दिया जाए, तो बाकी स्टेट्स ने डेवलप किया टेक्निक कि भाई टूरिज्म लाएंगे तो वहाँ से जो है वो पैसा आएगा, बाकी चीज़ें करेंगे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। झारखंड वगैरह में ये नहीं हुआ, तो लोगों के लिए एक और ना इन्फोर्समेंट था, अलग अलग कारणों को, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उतना जो है वो वाइल्ड लाइफ के ऊपर फोकस नहीं था, फंड्स नहीं थे, फोकस नहीं था, सरकार का सपोर्ट नहीं था, तो ना लोगों के पास कोई रीज़न था शिकार छोड़ने का, ना सरकार ने कोई उनको रीज़न, चाहे वो रूल्स को अप्लाई करके हो या ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स बना के हो, किसी भी तरीके से सरकार ने मदद नहीं की। तो धीरे धीरे सारे जानवर अभी क्या करना, अभी क्या करना रजा? अभी देखो, जब तुम जंगल देख लो, हजारीबाग का जंगल देख लो, सरंडा का फॉरेस्ट देख लो, बेतला का देख लो, पालमू का देख लो, इज स्टिल द वन ऑफ द फाइनेस्ट फॉरेस्ट इन इंडिया जी, बट दे आर डेड जी। उसमें ना पक्षी है ना पशु है। तो अब सर अभी क्या करना है? आई थिंक सर उसमें जैसे ये है कि मैं क्योंकि मैं बहुत इधर के जंगलों में जाता रहता हूँ, अगर आप एक मैक्रो लेवल पे देखेंगे, एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण से देखेंगे, या आप जो हैं वो एक क्या नाम है स्टेट लेवल पे देखेंगे, तो वाइल्ड लाइफ हैज़ कम्प्लीटली बिन डेसिमेटेड, कुछ ज़्यादातर पूरे झारखंड से, डिस्पाइट ऑलमोस्ट हैविंग 27-28% फॉरेस्ट कवर। लेकिन दी अदर थिंग इज़ कि कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे अभी भी कुछ वाइल्ड लाइफ बची हुई है। बेतला की जब बात करते हैं, वहाँ के मान लीजिए जो टूरिज्म एरिया 20 स्क्वायर किलोमीटर का बहुत छोटा है, पलामू टाइगर रिजर्व 1300 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन उस 20 स्क्वायर किलोमीटर में कुछ जानवर बचे हैं। दूसरी जगह आप मान लीजिए बात करेंगे अगर आप हजारीबाग के साइड में, तो गौतम बुद्धा और कोडरमा की जो सैंक्चुरी है जहाँ कोई नहीं जाता है, वहाँ अभी रिसेंटली कुछ कैमरा ट्रैपिंग हुई, क्योंकि सड़क चौड़ीकरण हो रही थी। तो उसमें ये नहीं था किसी को फिक्र थी वाइल्ड लाइफ की, बाय चांस ये हुआ कि क्योंकि सड़क चौड़ीकरण हो रही थी तो उसमें एक क्लॉज दिया था कि आपको मिटिगेशन मेजर के लिए देखना है कि यहाँ कुछ जानवर तो नहीं है। वहाँ पे साइंटिस्ट ने WIA के वाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आगे लगा कैमरा लगाए, तो उनको कई सारे जानवर मिले जो कि हम मानते थे कि विलुप्त हो गए वहाँ से। सरन्ना में कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे आपको अभी भी वाइल्ड लाइफ है बची हुई थोड़ी बहुत। तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि आपको उनको रिवाइव करने की कोशिश करना है, और उस रिवाइवल के लिए आपको लोकल लोगों को कोई कारण देना है, क्योंकि लोकल लोगों ने आज तक उनके लिए जानवर का क्या, मान लिया आप गांव में अगर आप रहते हैं तो आपके लिए क्या है, आप कहेंगे कि अरे जानवर है, हाथी है, हिरन है, ये तो आता है मेरा खेत जो है वो खा जाता है, मेरी जो है वो हाथी आके घर तोड़ देता है। ये तो सब जगह होता है ना, ये तो खाली झारखंड का एक्सक्लूसिव नहीं है जी, ना। लेकिन हमारे यहाँ बाकी जगहों की तरह जहाँ पे ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स किए गए हैं इनको रोकने के लिए, या जो लॉस होता है उसको ऑफसेट करने के लिए, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। यहाँ नुकसान हो जाता है तो किसी को फिक्र नहीं है, तो फिर लोग कहते हैं कि ठीक है इससे अच्छा हम जानवर मार के ख़त्म कर देंगे ताकि कम से कम हमारे खेत खलिहान में नुकसान ना हो। शिकार हो रहा है तो शिकार कोई रोकने वाला नहीं है, तो चलो हम जितना चाहे शिकार करेंगे। तो वो आपको उनको रीज़न देना है, दैट हैज़ टू बी बोथ। एक है कि आप 90% लोगों को आप जो है कन्विंस कर सकते हैं कि कोई चीज़ जो है वो उससे नुकसान हो रहा है, तो वो आप उनको समझाएंगे बुझाएंगे तो वो मान जाएंगे आमतौर पे और वो चीज़ें ट्राई करेंगे। लेकिन 10% ऐसे लोग होते हैं कि जो मान लीजिए कि ढीठ हैं, वो नहीं मानेंगे। तो देन यू हैव टू अप्लाई द लॉ कि अगर इफ समथिंग इज इलीगल, हंटिंग इज इलीगल, तो आप नहीं कर सकते ये। एंड 90% केसेस में यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल्सो साइमल्टेनियसली। सो इट्स अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी एंड बोथ हैव टू गो टुगेदर। यू हैव टू इंसेंटिवाइज नॉट हंटिंग and at the same time you have to enforce the law of protecting wildlife. I don't know how much time we have. Shahana, is she here? Just before we start the questions, if there are any, I just want to
use this opportunity with Raza to give you a glimpse of what used to happen in Bihar. One of the articles that Jamal Ara actually wrote was the presence of rhinoceros in Jharkhand. Did any of you even know that rhinos existed in Jharkhand? And when did it disappear? Sir, early 20th century, 1900. और कहाँ होते थे ये? Basically, sir, so they were found राइनो जो थे वो तराई के क्षेत्र में पाए जाते थे। तो बिहार में चंपारण का जंगल, लेकिन जो तराई का जंगल था चंपारण का जो नेपाल से लगा हुआ है, वो जंगल पूरा एक्सटेंड करता था कटिहार पूर्णिया होते हुए अपने नॉर्थ ईस्ट में साहिबगंज और ये गंगा के जो प्लेन है वहाँ तक। तो ये जो जंगल था साहिबगंज के बॉर्डरिंग तराई का जंगल था, अब तो ख़त्म हो गया, वहाँ सब खेत खलियान है। वहाँ पे राइनोज, वाइल्ड बफलोज, जिसके लिए काजीरंगा फेमस है, सेकंड बिग एनिमल, वाइल्ड बफलोज, राइनोज वगैरह सब वहाँ तक पाए जाते थे। अगर कटिहार के जो बड़ी ज़मींदारी फैमिलीज थी, उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं शिकार के ऊपर, पूर्णिया, शिकार इन पूर्णिया लैंड वगैरह करके, तो वो जो हैं वो इन सब एरियाज़ में राइनो का शिकार का और इन सब का जिक्र करते हैं। Well, while we're talking about all this, I just want to ask you two small questions. One is, what was the role, what was the status of this very controversial subject which we won't talk about today, the cheetah in India, the Indian cheetah? Cheetahs का sir, as in I won't go पूरे इंडिया की डिटेल में, but it is very few people note that cheetahs का जब इंडिया में पाए जाते थे उसका डिस्ट्रीब्यूशन झारखंड में काफ़ी मेजरली था। देवघर के में चीते मारे गए हैं, उनके रिकॉर्ड्स हैं। देयर इज बुक कॉल्ड 30 Years of शिकार बाय सर ब्रैडन 1895 की, उसमें वो देवघर में जाके कचहरी से उन्होंने उसके पास लिखते हैं कि कहाँ पे मैंने चीते मारे। ये जो रांची और रामगढ़ के जंगलों के आसपास पाए जाते थे, हज़ारीबाग से रिकॉर्ड्स हैं, सरंडा से रिकॉर्ड्स हैं, पलामू से रिकॉर्ड्स हैं। एंड चीताज वर वेरी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन झारखंड एंड दे डाइड आउट अराउंड 1920 के आसपास। इस तरह पिंक हेडेड डक हो गई, इवन लायन का एक रिकॉर्ड है यहाँ पे पलामू में 1814 में मारा गया एक लायन। सो इस तरह से वी हैव लॉस्ट अ लॉट। And before we just get to the questions, Shahana, for all the audience, just want to tell you that the rarest bird in India, one of the rarest birds in India, used to be called the pink-headed duck, which was last seen in Darbhanga in 1935. And Jamal Ara, let's return to Jamal Ara before we ask questions. She wrote about the pink-headed duck. Yes. What was the story of the pink-headed duck in Jharkhand? So I think, sir, basically there were alleged sightings on in Darbhanga and on the Bihar-Jharkhand border, especially again the same floodplains where the rhinos were once formed, जब जहाँ पे rhino पाए जाते थे. In the tall grass. जी, and wetlands वगैरह में. तो ये इन्होंने then she started 1950 के आसपास, क्योंकि इनका बहुत उस एरिया में रिसर्च वगैरह चलता रहता था, मूवमेंट था, तो इन्होंने वहाँ पे इनको पता चला कि 1935 में लास्ट रिकॉर्ड है, बट दरभंगा से उन्होंने कहा कि बहुत जगहों से लोगों ने क्लेम किया है, गाँव वालों ने, इनके कॉन्टैक्ट्स ने, कि अभी भी पिंक-हेडेड डक कुछ हैं वहाँ की झीलों में। एंड देन वो कई एक्सपेडिशंस पे गई और उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत सारा हैबिटेट तो उनके देखा देखी गायब हो गया उनके सामने, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ जगहों से अभी भी रिपोर्ट्स हैं जहाँ पे वी आई वांट टू कीप ऑन चेकिंग, लेकिन शी नेवर फाउंड द बर्ड, बट देयर वाज अ वेरी हाई लाइकलीहुड थ्रू हर राइटिंग्स दैट आई हैव रेड दैट द बर्ड सर्वाइव्ड right up till the 1960s. Now it is extinct globally. Yeah. लेकिन the last record पूरी दुनिया में उस चिड़िया का जो था वो दरभंगा से था. Similarly वही कि चीतास का जो है वन ऑफ द लास्ट रिकॉर्ड जो है वो हज़ारीबाग से है पूरे इंडिया में. alleged sighting 1948 of चीता के हम लोग सुनते रहते हैं. 1947 में लास्ट दिसंबर में मारे गए सरगुजा में, कोरिया में महाराज के द्वारा, लेकिन जो लास्ट alleged sighting है वो हज़ारीबाग के जंगलों में हुई थी. डांटो करके एक गाँव है उसके पास. तो इस तरह से बहुत सारे इंटरेस्टिंग पहलू हैं यहाँ की वाइल्ड लाइफ. वर्ल्ड हम लोग टाइगर सेंसस की बात करते रहते हैं, बाघों की गणना की बात करते रहते हैं. शायद ही लोगों को पता है कि दुनिया का पहला टाइगर सेंसस, जो टेक्निक है टाइगर सेंसस की, और पहला दुनिया का टाइगर सेंसस वो पलामू में हुआ था 1934 में. एक J.W. निकलसन नाम के अंग्रेज़ IFS ऑफिसर हुआ करते थे और उनके रेंज ऑफिसर थे, उनका नाम था मौलवी मोहम्मद शरीफ खान. इन दोनों ने मिलकर किया था और उसके बारे में लिखा था, और वही बेसिस था जिसकी बेसिस पे फिर 30 साल बाद जाके जो है वो
सेंसस की टेक्निक जो है वो पूरे इंडिया में अडॉप्ट की गई. एंड नॉट जस्ट फर्स्ट सर, सेकेंड सेंसस भी दुनिया का 34 में हुआ, फिर उसके बाद एक और बंगाली ऑफिसर थे सीएम चौधरी नाम के, उन्होंने 38 में एक और सेंसस किया. सो दैट ट्रेंड ऑफ डूइंग सेंसस हर 4 साल पे, वो इट वाज डेवलप्ड हियर इन पलामू. Yeah, people are looking at you very seriously. I think we should just end. I'm sorry, this is such a fascinating conversation, but we'll be very happy to answer a few questions if anybody has them. Yeah, I can't see. Abdul She's a little girl, yeah. Yeah. Can we give her the? Ha, beta. So I'm a boy. Oh, sorry. You're a boy. I'm so I'm sorry. very I beg sorry. your pardon. हाँ. So I've got 2 questions. So recently 5 elephants have gotten electrocuted, but there was no such hue and cry. ये So why was this? should I- Yeah, let Raza, you answer हाँ. it. This is your regional this Yeah. thing. जो अभी आप बात कर रहे हैं जो ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में जो हुआ था, देर वाजंट अ ह्यू एंड क्राई बिकॉज जैसा मैंने अभी बात की कि वी डिस्कस ना कि देर इजंट इनफ, people don't care. People don't care, governments don't care. So when people don't care, it works both ways. When the governments care, they make people care about certain issues. And when people care about certain issues, they force the government to care about them. But here the unfortunate tragedy is that neither care. So because neither care, what happens? ठीक है, हाथी मर गया, कोई बात नहीं. Hue and No, cry there तब must be a reason for it. You just can't blame. नहीं, You sir. can't blame. No, sir. I women. mean कि the electrocution was, there is a technical reason कि यहाँ पे क्योंकि sagging wires is a big problem हाँ, यहाँ I पे. know. So sagging wires is a big problem, but you find it everywhere, and then until unless there is a precedent set कि कहीं और पे 5 हाथी मरते हैं तो वो पूरी central team will descend on it, it will Yeah, take yeah. action. हाँ. ये सारी चीज़ होंगी, सरकार, state government will take action, there will be huge Yeah. hue and cry in the media. It does not happen here, so there is no pressure to change the ways. What's your second question? So I'm really interested in bird watching, but in this town, many of the birds I see are just pigeons, crows, mynas, and sparrows. Where do you see them? Just in this town, only a few species of birds Acha, can be Ranchi. seen. Yes, and I was wondering if you could suggest a few good spots, some forests or some areas in which I could spot some rare or exotic I birds. think I suggest you catch hold of Raza the moment we finish this and come out to catch him The outside. nearest place you can go to is Horhap. Horhap, it has a lot of bird diversity, and it's a small but a very nice forest, and there is, you can spot quite a few birds. I mean, I think there was somebody I know who did a survey of it, a rough ocular survey, and they spotted about 120 or 130 odd species. Anyway, he'll be happy to, Yeah. after this, to take you. Are there any other questions? Yes, please. सर Yeah. जोहार, मेरा नाम नितेश है. जी. आप दोनों से ही सवाल है कि क्या ऐसा कोई सर्वे है जहां हमें पता चले कि झारखंड की वाइल्ड लाइफ जब अंग्रेज आए तब क्या थी और फिर कैसे वो धीरे धीरे किस समय काल में तेज़ी से घटा है. दूसरा सवाल है कि जो काफ़ी समय तक और झारखंड के काफ़ी बड़े क्षेत्र में ज़मींदार और महाजन रहे हैं, तो उनके द्वारा किए जाने वाले शिकार का असर वाइल्ड लाइफ के घटने में क्या रहा है. बोल. सो अगर आप झारखंड की बात करेंगे, झारखंड के परिवेश की बात करेंगे तो बिल्कुल हैं. थोड़ा सा तो मेहनत लगती है. मैं क्योंकि वाइल्ड लाइफ हिस्ट्री मेरा शोध है तो मुझे पता रहता है कि आप पुराने ज़माने की बहुत सारी किताबें हैं जिनमें जो है वो आपको शिकार के रिकॉर्ड्स मिलेंगे इस जगह के. पूरी किताबें नहीं, लेकिन कहीं एक चैप्टर मिल गया, कहीं कुछ मिल गया. दी अदर मेजर सोर्स इज़ कि गजेटियर्स वगैरह आप पढ़ें. उनमें क्या होता था, अंग्रेज़ जो हैं वो बड़े मेटिकुलसली डॉक्यूमेंट करते थे किस डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग जो हैं वो मारे गए और कितने उसके बदले जो है जानवर मारे गए. देयर वाज अ पॉलिसी कॉल्ड द पॉलिसी फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ डेंजरस बीस्ट एंड वर्मिन्स. तो उसमें बेसिकली ये था कि जितने जानवर हो सकें जो किसी भी तरह से इंसान को या एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचाते हैं उनको मारो. तो उसके तहत जो है भारत में 50 साल में जो है वो लगभग 25,000 टाइगर्स मारे गए थे. झारखंड में जो आज झारखंड है, छोटा नागपुर में, वहाँ भी हर साल 20-25, 30, 20-25, 30, 40-50 जो है टाइगर्स और वाइल्ड लाइफ, लेपर्ड्स, बुल्स, वाइल्ड डॉग, सबको जो है मारा जा रहा था, सांपों तक. तो आपको उससे मिलेगा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अपनी हर साल की एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट होती थी, उसमें होता है.
तो ये तो आपको कहाँ से मिलेगा इसका आपको पर। और दूसरा आपका सवाल था कि आपने क्या पूछा दूसरा सवाल? जमींदारों हाँ, उसमें बहुत बड़ा रोल है। उसमें बड़ा रोल क्या है, एक तो जो शिकार करते थे वो तो है, लेकिन उससे बहुत बड़ा रोल ये है कि झारखंड में एक यूनिक केस ये था कि झारखंड के अधिकतर जंगल जो थे वो जमींदारी जंगल थे। अंग्रेज़ों का कंट्रोल झारखंड के जंगलों में अनलाइक अदर स्टेट सिर्फ सिंहभूम के जंगलों पे था और पलामू के जंगलों पे था। उस जाने पलामू के जंगल को कोडरमा के जंगल तक एक्सटेंड करते थे, लेकिन मोर देन 80% जो आज हम झारखंड का जंगल जानते हैं वो ज़मींदारों के अंतर्गत था। एक बिहार में एक्ट आया था, बिहार प्राइवेट फॉरेस्ट एक्ट, जिसके तहत 48 में उसको जो है सरकार ने ओवरटेक किया। लेकिन ज़मींदार और महाजनों ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि अब तो जो कहते हैं हम हिंदी में कि भागते चोर की लंगोटी सही, तो जो है वो भागते भूत की लंगोटी सही की। तो उसमें ये करना है कि आप जो है वो, उन्होंने कहा कि सारे जंगल काट दो ताकि बिफोर द गवर्नमेंट टेक्स ओवर दी फॉरेस्ट हम जितना टिम्बर है इसका बेच दें और जितनी आमदनी एक लास्ट बार कर सकते हैं इन जंगलों से कर लें। तो क्या हुआ कि सफा चट हो गए बहुत सारे जंगल झारखंड का। उसके बाद जो जंगल आए तो वो बहुत कमज़ोर जंगल पैदा हुए जो लास्ट 60-70 सालों में, और आपने जंगल डिस्ट्रॉय किए तो आपने ऑटोमेटिकली वाइल्ड लाइफ भी उस ज़माने में डेसिमेट की गई। But to be fair to the zamindars, they all were also naturalists. सर इन मेनी स्टेट्स दे वर, बट झारखंड में उस तरह का झारखंड में नहीं नहीं था था। कल्चर। झारखंड में जो थे जैसे साउथ में मैसूर में आसाम वगैरह में they were all naturalists. but- EPG and all of them were hunters. जी, but here unfortunately in Jharkhand that was not. Okay, it was just again. Yeah. I think with your permission, shall we? One more question if there's any. So we have very kindly been given permission for one more question. Huh? Yes. I can't see. Can you see it? सर जोहार, मेरा नाम ऋषिकेश है। जी। आपने कहा कि अब हमारे जंगलों में जंगली जानवर नहीं हैं, तो हम इसे कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि आने वाले समय में हम अपने बच्चों को केवल ये बताएंगे ये शेर ऐसा होता था, ठीक है, चीता ऐसा होता था, हमारे जंगली भालू ऐसे होते थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम अपने जो पूर्वजों ने गलती की है हम उसे कैसे सुधारें, और हम अपने जो जंगली जानवर हैं उसे कैसे बचाएं, और पशुपालन विभाग क्या कर रही है? क्योंकि आपने कहा कि जंगल तो है पर क्या है कि जानवर नहीं है, तो हम उन जानवरों को कैसे बचा सकते हैं और उनकी संख्या कैसे बढ़ सकती है? एक तो खाली जंगल की बात नहीं है कि जंगल के लिए बहुत कुछ चाहिए। जंगल के लिए नदी चाहिए। अब ये कहते हैं जंगल जो है, जो नदी है वो जंगल की माँ होती है। आप अपनी नदियों का हाल देखिए, आप गंगा जो आप अपनी माँ कहती हैं उसकी हाल देखिए, और आप देखिए कि आप अपनी माँ को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। आप अपने जंगलों की हाल देखिए। आप यहाँ झारखंड में ही देख लीजिए, ना चिड़िया है, ना जानवर है, ना सांप है, ना बिच्छू है, ना कुछ नहीं है। आप जब तक आप कह रहे थे अपने बच्चों को क्या दिखाएंगे? अपने बच्चों को पहले सिखाइए। बस एक बच्चे को सिखाना, वो बच्चा एक बच्चे को सिखाए, वो बच्चा एक बच्चे को सिखाए, दैट इज एनफ। बिल्कुल। आजकल जो हो रहा है, जो सेवियर है इस कंट्री का वो बच्चे हैं। द फ्यूचर लाइज विद द चिल्ड्रन। आजकल बच्चे आपसे पूछ रहे हैं कि आपको बड़ी गाड़ी किस लिए चाहिए। आप मारुति में जा सकते तो आपको मर्सिडीज इसलिए चाहिए। आपको 3 घंटे के बाद अपने कमरे में आना, तो अभी से 3 घंटे पहले से एयर कंडीशनर क्यों चलाते हैं? आप बाल्टी में क्यों नहीं नहाते? आप इतना पानी वेस्ट करते हैं शावर में। और ये कौन पूछ रहा है? बच्चे पूछ रहे हैं, और आपके बच्चे पूछ रहे हैं। हमारी जनरेशन तो फेल हो गई ना, बिल्कुल फेल हो गई है। और छोटे बच्चे जो हैं, एक बच्चा एक और बच्चे को पढ़ाए, एंड दैट शुड बी इनफ। पढ़ाई, एजुकेशन, educate your children in these kind of things, not in what Hrithik Roshan is doing or what Shah Rukh Khan is doing and what movie you should see. Take them out to this jungles of Ranchi. आप आपको कहीं नहीं, आप मैं इसीलिए कहता हूँ बहुत अच्छा। आप तो, हम लोग रांची में इतने खुशकिस्मत हैं कि हमको अगर जंगल जाना है तो फिर भी हम जा सकते हैं। आप फुरहा चले जाइए। आप, क्योंकि जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी तब तक सरकार को कोई मतलब नहीं होगा। सरकार तभी एक्ट करती है जब वो देखती है कि इतने लोग हैं जो किसी इशू पे हल्ला मचा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कॉमन टर्म में।
तो अगर जब इनफ लोग जो हल्ला मचाने लगेंगे हाथियों को लेके, तो सरकार जो है वो हाथियों के मरने पे केयर करेगी। जब इनफ लोग हंगामा मचाने लगेंगे कि कहीं डैम बन रहा है उसमें जो है वो जंगल डूब रहे हैं, तो उसमें जो है वो वही बात है कि सरकार इंटरवीन करेगी। तो नीचे से आपको ग्राउंड स्वेल करना होगा। उसमें जैसे सर ने कहा कि बच्चे सबसे की हैं, जंगल ले जाइए उनको, हमारे यहाँ पलामू ले जाइए, आप सरंडा के जंगल ले जाइए, हजारीबाग ले जाइए, होरहाप ले जाइए। आप एक बार आप जंगल में जाएंगे, आप बच्चों को उनको वहाँ पे घुमाएंगे, आप उनको वक्त बिताएंगे, 10 में से 3-4 बच्चे तो जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे कंजर्वेशन की तरफ, और वो फिर जैसा सर ने कहा वो और बच्चों को और लोगों को फैमिलीज को इनकरेज करेंगे। एंड दैट इज हाउ यू बिल्ड अ ग्राउंड स्वेल इस तरीके से। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अपना समय बिताइए झारखंड के जंगलों में, कॉर्बेट की तरफ मत रुख करिए, पलामू की तरफ करिए, झारखंड में अपने जंगलों को देखिए, और जो उनके बारे में परेशानियां उनके बारे में देन अथॉरिटीज़ को बोलिए, मीडिया को बोलिए, लिखिए इसके ऊपर। मैं तो जाते ही रहता हूँ, ठीक है, मैं थिएटर से हूँ। मेरे कहने का मतलब है जो जानवर बच रहे हैं उन्हें और कैसे बचाया जाए, ठीक है। मैं इस पे आके, समय का बिल्कुल खत्म हो गई, हम लोग को वार्निंग मिली, बट आपसे बात करता हूँ इस पे आके, है ना। धन्यवाद, थैंक यू। ये किताब मत हाँ। भूलिए पढ़ने के लिए। इसमें रजा की बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी है जमाल आरा के बारे में, बाहर बिक रही है। एंड योर माइक सर, झारखंड ओके, झारखंड में विशेष करके खनिज उत्खनन के कारण से जंगल का ज़्यादा ह्रास हुआ है। तो ये तो एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए जो भी है, या आई थिंक उस सो। पे क्या हाँ, करना चाहिए। अभी हम नीचे आ रहे हैं और मैं आता हूँ क्योंकि समय का Yeah. वो है, लेकिन मैं आपको आके इस पे जरूर चर्चा करता हूँ मैं आपसे। thank you everybody, thank you. We are here. If there's any other questions, I'll be happy to answer them.